these things to be covered in this. Okay, all these things will be covered in the estimating and costing. Okay? The estimating and costing में all these things will be covered. Okay? So starting while construction of in a private sectors or while constructing in a government sectors. Sorry. Yes. So both the things it has to be covered. Okay? It will be covered. So while construction in the government sectors or in the private sectors, so everything starting from first stage up to the last stage, every the cost of the constructions or the total cost of the constructions will be calculated or will be studied in the estimating and costing subject. Okay, so there are various bits, there are various units covered in the estimating and costing. So every unit is very important. Okay, so you should not study just for passing purpose or just for clearing or just for taking the degree, but you have to study this subject for because it has directly been implemented on site. It has been directly used for being a civil engineer. So it will be directly used by a civil engineer. So you have to broadly study all the different concepts or which has been taken care or which has been uh, it has been available in your different units. So all the 6 units are very important because every unit it has covered some important things. Every unit it is having some specialty or some special things that has been covered in every unit. So every all the 6 units are important. So the evaluation scheme for this is nothing but total is 80 marks. Paper is there and 20 marks there is internal. Okay. So overall, if you can see in the screen, so 80 marks is the university paper is there and 20 marks the internal assessment is there, which carries your attendance, which carries your assignments, and which carries your the different daily activities. So 80 plus 20 is nothing but the 100. And exam point of view, there will be a 4 hours papers. So this will be decided whether the paper will be offline or online. So it is a different matter, but usually there is a 4 hours paper for estimating and costing. 4 hour time duration it has been given for this estimating and costing subject. Whereas again evaluation scheme for the practical purpose, there is 50 marks internal and 50 marks external. Normally there are 25 marks internal and 25 marks external. But for this estimating and costing subject, there is 50 marks internal and 50 marks external. Okay, so this 50 marks internal will carry the record books. So I will give the record, the problems or the practicals which has to be solved in the record books. So you have to maintain a record books on at the time of lectures. I will post the practicals on the Google Classroom also, or I will ask you to solve this in practical record books also. Okay. So there is no as such separate lab is there for estimating and costing. There is no as such there is experimental. There is no as such experimental performed for this estimating and costing. But the things which we will cover in the class, the same things in some different manner we will write down in the record books. Okay. तो रिकॉर्ड बुक्स में वही लिखना है आपको, बट इन डिफरेंट केस डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिकल्स आपको वो थोड़ा ब्रॉड वे में उसको रिकॉर्ड बुक्स में यू हैव टू राइट डाउन इन द रिकॉर्ड बुक्स. ठीक है, इसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होगा जैसे आपने नॉर्मली जैसे सॉम में होगा या सीटी में या फिर टीआरई में जैसे आपने पढ़े होगे कि परफॉर्मेंस हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है. But these the things which we have studied in the different units, the same in some different manner you have to write down in the record books. ठीक है, तो वो भी देखेंगे अपन. तो 50 मार्क्स इंटरनल है इसका, 50 मार्क्स एक्सटर्नल है. तो इन दिस वे द टोटल दैट इज द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 150 मार्क्स. ठीक है, the weightage is very important. The weightage is itself justifies its weightage in your curriculum. ठीक है, so in your curriculum its weightage is very important because it is very useful on sites. Therefore its weightage in RTMNU university or your curriculum is also more. 150 marks weightage is given, in which 100 marks is there, 80 marks paper is there, 20 marks internal is there, and 50 internal and external practicals are there. Okay, so overall 150 marks is there. So in a short way or in a short we will have an introductions for the different units, because as today is the first lectures of estimating and costing, so we will have a small introduction of estimating and costing. So as I've already said you, so anyone with
which things will be covered in estimating and costing? Anyone, any ideas about this? क्या हो सकता है estimating and costing में? Yes, anyone? सुमेरा, आसिफ, सर पीयूष? एस्टिमेट निकालते हैं इसमें Yes, estimating of which things? बिल्डिंग्स का जो भी अपन बनाते हैं, जो वर्क करने वाले रहते हैं, उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या डिटेल्ड एस्टिमेट निकालते हैं। Yes, yes, yes. So we can find out approximate as well as detail, दोनों भी निकालना है आपको, ठीक है? तो यूनिट वन नंबर वन जो है that deals with the approximate estimate, एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर टू डील्स विद द डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है? कुछ चीजें ऐसा होते हैं कि अगर आप जैसे साइट पे खड़े हैं किसी के पास, अगर बीइंग अ फ्रेंड अगर मैं किसी के साइट पे गया और उसने खड़े खड़े बोला है कि मेरे को दिस इज द लैंड, ओपन लैंड, एंड आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग हियर, so what is the cost? So I will not say being a civil engineer, I will tell you after 10 days or after a week or after 15 days after calculations, है ना? आप ऐसे नहीं बोल सकते उसको कि खड़े खड़े कि मैं बताता हूँ ना 5 दिन के, आफ्टर टाइम और आफ्टर 5 days और 10 days आई विल फाइंड आउट ऑल द क्वांटिटीज एंड देन आई विल शो यू, ठीक है? So if you are finding out all the quantities, that is detailed. It requires time. It requires 2 to 3 days, 4 days for detailed estimate. बट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर निकालना है आपको, खड़े खड़े निकालना है, बीइंग विद इन 5 minutes और 10 minutes, तो कैसा निकालेंगे? तो आई विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द रेट ऑफ और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ विथ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है? इंक्लूडिंग लेबर्स एंड मटेरियल्स दोनों मिला के क्या प्रेजेंट रेट है वो एरिया का, कंस्ट्रक्शन का, तो वो अपने को मालूम होना है। तो मल्टीप्लाइड विद द दैट इज द स्क्वायर फीट एरिया, जो भी एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वेदर इट इज 1,000 स्क्वायर फीट और वेदर इट इज 1,500 2,000, जो भी स्क्वायर फीट का आपका कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो स्क्वायर फीट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय द करंट रेट। आपको मालूम होना है कि वो एरिया में कंस्ट्रक्शन रेट क्या चल रहा है, ठीक है? इट इज वेदर इट इज 1,500 और 2,000 और 5,000 और 4,000, है ना? प्रेजेंट रेट स्टील के हिसाब से, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स के हिसाब से, तो क्या रेट चल रहा है। तो दिस इन अ शॉर्ट वे में अगर आप उसका कॉस्ट बताते हैं, दैट इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। और डिटेल निकालना है तो वो भी वी विल स्टडी इन द यूनिट नंबर 2, दैट इज द डिटेल एस्टिमेट, ठीक है? एनी आइडिया अबाउट दिस? और इसके अलावा क्या हो सकता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का? ये तो एक पैरामीटर हो गया था। पीयूष, और क्या पड़ेगी इसके अंदर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग? एनी आइडिया अबाउट दिस? अभिनव, क्या हो सकता है इसमें? सुमेरा, सुमेरा प्रेजेंट है? सुमेरा खानम, सुमेरा खानम, यस सर। सुश, हाँ, क्या पढ़ेंगे बताओ एस्टिमेटिंग में? एनी आइडियाज अबाउट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग? सर उसमें बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे सैंड, एग्रीगेट, और जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। और सुषमा वर्मा? ये सर क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना यूज करना है, किस मटेरियल किस हिसाब से, कितना एरिया के हिसाब से कितना क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटीज निकालेंगे, है ना? क्वांटिटीज निकालेंगे डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड के, ठीक है? यस सर। मुस्तकीम खान, यस सर। मुस्तकीम खान क्या बताते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या हो सकता है? मुस्तकीम? सर रेट एनालिसिस होता है, टेंडर रेट एनालिसिस हो सकता है। अच्छा, रेट किसका निकालेंगे आप? रेट एनालिसिस मुस्तकीम? तो मटेरियल का, मटेरियल्स का। अच्छा, मोहन, मोहन, मोहन कनौजिया, मोहन है प्रेजेंट? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, बताओ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या स्टडी हो सकता है? मैं यूनिट्स बताऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर खत्म हो गया, अभी बाकी है लेक्चर। ओनली आई हैव टू टेक आइडियाज अबाउट व्हाट इज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आपकी तरफ से आइडियाज होना है कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है? सो दैट आई शुड सेफ्टी एक्सप्लेन टैंक बना सकते हैं। जी, सेफ्टी टैंक। septic tank, okay, we can construct a septic tank with the help of estimating, okay, yes, यस सर, कम्युनिटी वेल भी बना सकते हैं। yes, wells भी है ना, कम्युनिटी वेल्स भी, मतलब उसका एस्टिमेट निकाल सकते हैं, मटेरियल्स का और लेबर्स रिक्वायर्ड का और कॉस्ट का, ठीक है? यस, यस सर। तो ये एक मतलब एक अलग सेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया। नॉर्मली सेप्टिक टैंक्स कैसा है कि ड्रेनेज सिस्टम है प्रोवाइडेड रहता है, बट इन विलेज एरियाज और आउटस्कर्ट्स में वी आर यूजिंग सेप्टिक टैंक्स, ठीक है? तो एक थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है सेप्टिक टैंक्स का, ठीक है ना? डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसका, है ना?
Yes, so we can have an estimating, or we can have an cost of, we can find out the cost of a septic tank also. जैद सादिक क्या हो सकता है इसके अंदर, बताओ। जैद, जैद इज प्रेजेंट, जैद प्रेजेंट है क्या? तारिश, यस सर, प्रेजेंट। हाँ हाँ, बताओ क्या हो सकता है एस्टिमेटिंग में, बताओ। टिंग का एस्टिमेट निकालना है, एग्रीगेट, सैंड, अच्छा, ईटा वगैरह। ओके, ठीक ठीक। सर, हाँ बोलो सुषमा, बोलिए। सर इसमें लेबर और कितने दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? डेज नहीं फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है ना। डेज वाला जो कंसर्न है, दैट डेज कंसर्न विल बी कवर्ड इन मैनेजमेंट, ठीक है ना। वो मैनेजमेंट आता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली वो भी चीज मेरे पास ही है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ। तो वो कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट में आता है कि हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड एज पर लेबर्स। जैसा मेरे पास अगर कोई भी काम, जैसा एक्सकेवेशन है सपोज, है ना, मेरी बिल्डिंग यस में सर। अगर 5,000 स्क्वायर फीट का अगर मेरे पास एक्सकेवेशन करना है, 5,000 स्क्वायर फीट का एक्सकेवेशन है मेरे पास, ठीक है, एरिया में। अब उतना बड़ा स्क्वायर फीट का एरिया में अगर मैं एक्सकेवेशन करूंगा विथ 4 लेबर्स, तो कितने दिन लगेंगे मेरे को, है ना। तो इट विल हाँ। रिक्वायर नियर अबाउट 15 डेज, 10 to 15 डेज। अगर मैं 4 लेबर में कर रहा हूँ तो 10 to 15 डेज लग रहे हैं, है ना। अगर 8 लेबर्स में लग रहा हूँ तो मैं 4 डेज में हो रहा है। ऐसा अगर मैं जेसीबी से कर रहा हूँ तो कितने आवर्स में हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन डेज में। अगर कैलकुलेट करना है तो इट विल बी कवर्ड इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता है उसमें, वो मैनेज करते हैं कि हाउ मेनी डेज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसा एक एक्सकवेशन एक एक्टिविटी हो, और समझो पीसीसी एक एक्टिविटी हो गया। फाउंडेशन में अगर आप फिलिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन कास्टिंग हो रहा है तो वो एक एक्टिविटी हो गया। कॉलम का अगर इरेक्शन हो रहा है, कॉलम कास्टिंग हो रहा है तो वो एक एक्टिविटी हो गया। स्लैब एक एक्टिविटी हो गया, प्लास्टरिंग एक एक्टिविटी हो गया। तो ऐसे हर एक्टिविटी में कितने डेज लगते हैं, कितने लेबर्स लगते हैं, कितना मटेरियल लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, वो सारा इट हैज बीन कवर्ड इन द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड लॉ, ठीक है। वो सारा भी एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक फील्ड है ये, ठीक है। नाउ डेज दिस फील्ड इज वास्टली यूज, ठीक है। सीपीएम पर्ट बोल के एक सॉफ्टवेयर इज देयर, सीपीएम पर्ट, which uses with the help of that software we can easily find out the days required, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज में दिस सॉफ्टवेयर इज यूज नाउअडेज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे पूना, मुंबई है, ऐसे सिटीज में दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेज एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो भी सॉफ्टवेयर यस। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सीपीएम पर्ट बोल के, है ना। क्रिटिकल पाथ मेथड है, और सीपीएम पर्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है, तो दैट सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज, है ना। तो दैट सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज, ठीक है। तो ओके। मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट यूनिट? यस, सर हेलो। बोलिए। यस, सर जैसे जैसे अपन लिफ्ट करेंगे फ्लोर को तो हाँ, कॉस्टिंग भी चेंज होगा ना सर? क्या करेंगे? जब जैसे सर एरिया अपन एक एरिया में बिल्ड कर रहे हैं, जैसे एक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, तो जैसे हाँ जैसे लिफ्ट होगा मतलब फ्लोर, हाँ तो हाँ, कॉस्टिंग चेंज होगा ना सर? चेंज होगा, यस। क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड टू द फ्लोर्स। जैसा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, वो फ्लोर नीचे का मटेरियल फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, तो मटेरियल की इफिशिएंसी कंस्ट्रक्शन की स्लो हो गई आपकी। क्यों हो गई? क्योंकि आप मटेरियल ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना। तो उसमें एक्स्ट्रा लेबर्स रिक्वायर्ड हो रहा है। तो जैसे जैसा कंस्ट्रक्शन ऊपर बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा लेबर्स में, वैसा वैसा कॉस्ट में, एज पर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ठीक है ना। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू में एक्स्ट्रा लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, दूसरे से तीसरे में। जितने फ्लोर्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना आपके पास लेबर्स रिक्वायर्ड लगेगा, और उतना आपको फिर लेबर्स कॉस्टिंग उसका इंक्रीज होते जाएगी। उसके लिए भी परसेंटेज रहता है। तो अगर समझो किसी ने बोला है कि मेरे पास अगर ग्राउंड में मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो आप इतना पैसे देना, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे करता हूँ तो 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज आपको अमाउंट अच्छा, देना पड़ेगा, ठीक है। 10%। तो ऊपर में इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 का एक शॉर्ट मैं एक वो देता हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट नंबर 1। डिटेल वी विल स्टडी। मैं 6 यूनिट्स का एक शॉर्ट रिव्यू बता रहा हूँ आपको।
कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स और व्हाट आर द डिफरेंट बिट्स कवर्ड इन दिस। तो सबसे पहला है यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में क्या हो सकता है कि भाई एस्टिमेटिंग का, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया और मैंने थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताया, तो एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन होगा, उसमें इंपॉर्टेंस होगा, उसका पर्पस होगा सब्जेक्ट का, एस्टिमेटिंग का क्या हो सकता है, उसका डेफिनेशन क्या है, पर्पस है, क्यों होना चाहिए एस्टिमेटिंग, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये सारा चीज यूनिट नंबर 1 में कवर होगा, उसमें बिट नंबर 1 में। उसके बाद यूनिट्स कवर्ड भी हो गए, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मेरे को एक्सकवेशन करना है तो वो मीटर क्यूब में होगा, जैसा मेरे को पीसीसी करना है वो भी मीटर क्यूब में होगा, जैसा मेरे को प्लास्टरिंग करना है वो मीटर स्क्वायर में होगा। प्लास्टरिंग मीटर क्यूब में नहीं होता है ना, मीटर स्क्वायर में होता है। तो ऐसे विच क्वांटिटीज विल बी कवर्ड इन मीटर क्यूब और विच क्वांटिटी विल बी कवर्ड इन मीटर स्क्वायर और विच क्वांटिटी विल बी कवर्ड इन रनिंग मीटर्स, है ना। तो ये सारा, और विच क्वांटिटीज विल बी कवर्ड इन नंबर्स, कुछ कुछ चीजें नंबर्स में होते हैं, 10 नंबर लग रहे हैं, 5 नंबर लग रहे हैं, है ना, 2 नंबर लग रहे हैं। डोर्स, डोर्स काय में रहेंगे, नंबर्स में रहेंगे। आप उसमें लेंथ विड्थ हाइट नहीं हो सकता उसका, नहीं, उसका तो प्रॉपर वे में रहेगा कि इतना लेंथ रहेगा और इतना हाइट रहेगा। बट अगर आपको अवेलेबल करना है तो वो नंबर्स में रहेगा, ठीक है। तो all these units of measurement as per IS 1200, again this IS 1200 is very important, ठीक है। तो मेरे पास इसकी पीडीएफ फाइल भी है। तो बीइंग एन एस्टिमेटर, अगर while studying estimating and costing, अगर आपको स्टडी करना है तो IS 1200 इट शुड बी थरो, ठीक है। Because every line and every paragraph of this IS 1200 is very important, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्लॉजेज है, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं। इसके नियर अबाउट देर आर 20 पार्ट्स। IS 1200 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 अप टू पार्ट 20। तो एवरी पार्ट ऑफ दिस 1200 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड का 1200, ये IS कोड, इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसका प्रैक्टिकल भी है। तो कभी कभी वी विल हैव रिव्यू ऑफ व्हाट द थिंग्स इट हैज बीन कवर्ड इन IS कोड, ठीक है। तो कुछ कुछ वाइल स्टडिंग इन लेक्चर्स अपन IS कोड का कुछ रेफरेंस भी ले लेंगे IS 1200 का। It has been quoted from IS 1200 this thing to be calculated in this way, it has been mentioned in IS 1200, ठीक है ना। तो ये मेजरमेंट्स कैसे लेना है, उसका क्या डिडक्शंस होगा, क्या एडिशन होगा, क्या सब्सट्रैक्शन होगा, IS 1200 में मेंशन है, ठीक है। अब बिट नंबर 3 भी देखो, इसमें यूनिट नंबर 1 में थर्ड जो बिट है, वो थर्ड बिट है आइटम्स ऑफ वर्क एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क। मतलब आइटम्स ऑफ वर्क में डिफरेंट वर्क्स के डिफरेंट आइटम, जैसे मैंने बताया था एक्सकवेशन से लेके आखिरी तक जो रहेगा, फ्लोरिंग और फिनिशिंग तक, टाइल फिटिंग तक। तो व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स और उसका डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट वे में रहेगा इसमें, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट बॉडीज से अगर आपको सैंक्शन कराना है कंस्ट्रक्शन वर्क तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन होगा। तो ये भी एक ब्रॉड वे में इट हैज बीन स्टडीड इन यूनिट नंबर 1, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या रहता है, टेक्निकल सैंक्शनिंग क्या रहता है, विच अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, विच अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल सैंक्शनिंग, है ना। तो ये सारी चीजें इट विल बी कवर्ड इन यूनिट नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बिट इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स मेथड्स। मतलब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, उसी का दूसरा नाम क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट, उसका मेथड्स कैसे कैसे हैं, है ना। ये भी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को मैंने जैसा भी एग्जांपल दिया था कि आपको खड़े खड़े किसी को अगर रेट बताना है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना, बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर और बाय यूजिंग मतलब एक पेन और पेपर लेके बोलो, या फिर डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर आपको किसी को कंस्ट्रक्शन का रेट बताना है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो बाय विद हेल्प ऑफ दिस प्रिलिमिनरी एस्टिमेट वी कैन इजीली कैलकुलेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एट विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकंड यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये भी डिफरेंट मेथड्स है उसके, वो भी स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में। और सेकेंड लास्ट बिट इज अर्थ वर्क एस्टिमेट्स इन रोड्स, हिल रोड्स एंड कैनाल्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसा एक्सकेवेशन बिल्डिंग्स का तो आपने देखे होंगे कि जो भी कॉलम्स के लिए एक्सकेवेशन होता है वो तो सिंपल वे में आप कैलकुलेट करते हैं। बट अगर मेरे को रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका एक्सकेवेशन सिंपल नहीं होता है, ठीक है। इट इज हैविंग सम ग्रेडियंट्स, वो रोड अप्स एंड डाउन्स रहता है, ठीक है ना। कुछ रोड्स ऊपर की तरफ है ना, अपस्ट्रीम फॉलिंग ग्रेडियंट रहता है, विच सम रोड्स इट इज हैविंग अ राइजिंग ग्रेडियंट, ठीक है ना। किसी को राइजिंग ग्रेडियंट होता है, किसी का फॉलिंग ग्रेडियंट होता है, कोई स्लोप में आता है, कोई ऊपर के चढ़ाव की तरफ रहता है, ठीक है ना।
तो all these gradients will be calculated. Earthwork in roads is very very important, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा important है बिट यूनिट नंबर 1 में, जिसमें अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड्स में मालूम करेंगे अपन, हिल रोड्स में। और ये एक चीज और इम्पोर्टेंट इज कैनाल्स, ठीक है ना, अर्थवर्क इन कैनाल्स, यस, मैं हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द अर्थवर्क एस्टिमेट्स इन रोड्स, हिल रोड्स। हिल रोड जैसा मैंने बताया था, अपस्ट्रीम में जो ऊपर की तरफ रहते हैं, है ना, माउंटेन्स में जो रहते हैं क्लाइंबिंग, तो वो, और कैनाल्स में। अब उसके मेथड्स भी, कौन से मेथड से वी विल कैलकुलेट द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 जैसे मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 1 मतलब ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिट का हर एक बिट कहीं ना कहीं इट इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड, इट इज डायरेक्टली यूज, ठीक है। तो यूनिट 1 के ऑल बिट्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड बिट्स है, आईएस कोड से रिलेटेड बिट है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से रिलेटेड बिट है, और अर्थवर्क से रिलेटेड बिट है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जैसा बताया था कि डिटेल्ड एस्टिमेट है, जैसा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या क्या उसके मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, उसके हर एक मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप, कैसा मीटर क्यूब में मेजर होगा, कैसा उसका लेंथ विड्थ हाइट रहेगा, कैसा उसका सबसेक्शन एडिशन रहेगा एज फार एज 1200। तो ऑल दिस विल बी स्टडीड अगेन इन अ ब्रॉड वे इन यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Objectives, importance and accuracy as per IS 1200, we have to accurately measure the construction work, ठीक है ना, because a small 0.1 mm का भी अगर आपका डिफ्लेक्शन होता है मेजरमेंट में, 0.1 mm, इट इज वेरी माइनर, ठीक है। तो 0.1 mm और 0.1 सेंटीमीटर्स और 0.1 मीटर्स का भी अगर वेरिएशन होता है अगर कैलकुलेशंस में, तो इट विल वेरी इन बिकॉज इट विल वेरी इन कॉस्ट, ठीक है ना, वो कॉस्ट पे वेरी करेगा वो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन में अगर मैंने कैलकुलेशंस में वेरी किया, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी, इट विल बी चेंज, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, उसके भी मेथड्स होंगे, जैसे प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट के मेथड्स से वैसे डिटेल के भी मेथड्स होंगे, डिफरेंट डिटेल मेथड्स के मेथड्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। फिर डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, यस, ये दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कैसा था, नॉर्मली इट वाज यूज्ड इन प्रीवियस ओल्ड कंस्ट्रक्शंस, जो था आउटडेटेड जो कंस्ट्रक्शंस थे वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स के थे। अभी जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे, इट इज वी आर यूजिंग द फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अभी जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे कैसे हो रहे फ्रेम स्ट्रक्चर्स के, पहले कैसे हो रहे थे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स के होते थे, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट विल स्टडी इन यूनिट नंबर 2। ओल्ड कंस्ट्रक्शन कैसे मेजर करते थे, उसमें कैसा होता था उसका आइडियाज फॉर मेजरमेंट, ठीक है। और नाउ डेज के जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे कॉलम है, बीम है, स्लैब है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर्स है, वो भी कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लास्ट बिट यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 2 की लास्ट बिट इज रेनफोर्समेंट स्टील, दैट इज कॉल्ड एज बीबीएस। What is BBS? Bar Bending Schedule, BBS, Bar Bending Schedule। तो ये आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, एक शीट बनती है बार बेंडिंग शेड्यूल की, जिसमें शेप भी रहता है, क्वांटिटी भी रहता है, वेट भी रहता है, नंबर्स भी रहते हैं, ठीक है ना। वेट भी कितना है लगेगा स्टील का, और नंबर्स भी लगेंगे, और कौन से साइड में लगेगा, वेदर इट विल बी यूज इन बीम, वेदर इट विल बी यूज इन कॉलम और स्लैब, उसमें कौन से एमएम का बार लगेगा, कितना लेंथ रहेगा, कैसा शेप रहेगा, कैसा वेट रहेगा, कितना वेट रहेगा, ये सारा ऑल दीज थिंग्स इट हैज बीन टेकन केयर इन बीबीएस, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। यूनिट नंबर 1 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर का क्वांटिटीज निकालना है आपको बाय डिफरेंट डिटेल मेथड्स में, और स्टील की भी क्वांटिटी निकालना है कि मेरे कॉलम में 4 बार लगेंगे या फिर 6 बार लगेंगे, उसमें स्टीरअप्स कितना लगेंगे, सर्कुलर रहेगा स्टीरअप, रेक्टेंगुलर रहेगा, स्क्वायर स्टीरअप रहेगा, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, उसकी स्पेसिंग कितनी रहेगी, उसका वेट क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, डायमीटर कितना रहेगा। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन द यूनिट नंबर 2, यस। नेक्स्ट इज अगेन यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 3 डील्स विद द टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में नाउ डेज प्राइवेट सेक्टर्स आर आल्सो यूजिंग दिस टेंडर्स कंसेप्ट, ठीक है ना। ई टेंडरिंग वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है ना। पेपर्स अगर आप पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, न्यूज़पेपर्स में नाउ डेज वेरियस एड्स आर गिवन, आप देखेंगे टेंडर्स, है ना। टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस।
तो ये सारे टेंडर्स थ्रू आज सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो टेंडर्स के डिफरेंट स्टेजेस क्या रहते हैं, टेंडर्स में डिफरेंट मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स और डिफरेंट स्टेजेस क्या रहते हैं, और डिफरेंट वेरियस पैरामीटर्स कैसे रहते हैं to have a valid tenders or tenders on which skills it has been accepted, rejected कैसा होता है, accepted कैसा होता है, different documents क्या क्या required होते हैं, what are the different clauses covered in tenders. तो all these will be covered in tenders and contracts, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 इज अगेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड 1 2 3 4 यस फोर्थ बिट इज अगेन इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टेंडर्स। फोर्थ बिट क्या है, देखो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। लीगल एस्पेक्ट्स, यस लीगल, अगर किसी को केस करना है लीगली वी हैव टू हायर एडवोकेट, और लीगली अगर कोई चीज मेरे मतलब अगेंस्ट में हो रही है और आई एम I have to do this thing, but it is not in such a way, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, लीगली आई एम करेक्ट बट बिल्स प्रॉपर वे में नहीं हो रहे, तो अगर लीगल एक्शन लेना है तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स और व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेस मेंशन अगेन विल बी कवर्ड इन दिस, ठीक है। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस, लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं उसके गवर्नमेंट प्रोविजंस के हिसाब से। और आर्बिट्रेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेशन क्या है, डिस्प्यूट, ठीक है ना। अगर डिस्प्यूट होता है, अगर टू पार्टीज में, ओनर में और कॉन्ट्रैक्टर में, जो बना के ले रहा है और जो बना के दे रहा है, दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है, तो एट द टाइम टू सॉल्व द डिस्प्यूट दिस टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसमें एक बिट रहता है आर्बिट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स रहते हैं और आर्बिट्रेशन। देन ये भी यूनिट नंबर 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन स्पेसिफिकेशंस, यस दिस स्पेसिफिकेशन इज कवर्ड इन यूनिट नंबर 4। स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिट है यूनिट नंबर 4 का, दैट इज स्पेसिफिकेशन। कोई भी चीज अगर मेरे को ड्राफ्ट करना है, जैसे मेरे को एक वॉल भी खड़े करना है, सिंपल वॉल है जो 4 इंच की 6 इंच की नॉर्मली वॉल रहती है, 4 इंचेस और 6 इंचेस रहता है नॉर्मली, 100 mm और 150 mm की वॉल रहती है मेरे पास। तो अगर वॉल भी कंस्ट्रक्ट करना है तो व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस उसके उसमें डिस्क्रिप्शन इन द सेंस what should be the quality of bricks का साइज क्या रहेगा, ब्रिक का क्वालिटी क्या रहेगा, ब्रिक का मतलब उसका वाटर अगर मैं सोक कर मतलब उसमें वाटर को अगर रखना हो ब्रिक्स को अगर फॉर 24 आवर्स, तो हाउ मच ड्यूरेशन इट शुड सोक इनटू द वाटर, सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है ना। फाइन एग्रीगेट और द पेस्ट और मोटर में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना है, तो उसका भी सारी चीजें प्रोविजन इट हैज बीन गिवन इन स्पेसिफिकेशंस। कितने घंटे आपको सोक करने के लिए ब्रिक्स रखना है, सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द मोटर। तो ऑल दिस थिंग्स, उसका बाउंड कैसा रहेगा, वेदर इट विल बी अ फ्लेमिश बाउंड, और व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ दैट इज मोटर का जो रहता है दो ब्रिक्स के बीच में जो रहता है फिलिंग का, उसका विड्थ कितना रहेगा, उसका मतलब प्रॉपर वे में जॉइंटिंग्स के विच बॉन्ड विल बी यूज्ड। तो ऑल दिस इन अ डिस्क्रिप्टिव वे वी विल स्टडी इन द यूनिट नंबर 4। तो डिस्क्रिप्टिव वे में वी विल स्टडी द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बॉडीज में, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको काम करना है, जो लिखा है वो करना है ना। एज पर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो करना है, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी इन अ रिटन वे, इट हैज बीन वी शुड कंस्ट्रक्ट as per the written provisions, ठीक है। तो all these things will be written in the specifications, a proper way में it will be specified, ठीक है। तो उसके different methods भी cover होंगे इसमें specifications में। अब उसी का स्पेसिफिकेशन का यूनिट नंबर 4 का और एक बिट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट को मतलब प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करना है कि कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेबर्स को कितना जा रहा है, मटेरियल्स को कितना जा रहा है। तो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरियस मेथड्स, मटेरियल एट साइट अकाउंट, एक बुक रहती है मटेरियल एट साइट, मेरे साइट पे कितना मटेरियल आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना रिटर्न हुआ, या फिर रिटर्न नहीं हुआ तो कितना मतलब डंप हुआ, ठीक है ना, या फिर इट हैज बीन वेस्टेड, ठीक है। तो मटेरियल एट साइट अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बिट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल एट साइट MAS अकाउंट। इशू रेट्स एंड स्टोर अकाउंट, मेरे स्टोर में से अगर कोई चीज जाती है तो आई शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस बीइंग एन इंजीनियर। तो मेरे मेरे स्टोर में से कितना बैग्स ऑफ सीमेंट यूज हुआ है आज की डेट में, what is the name of that contractor or what is the name of that site what is the name of what is the particular nature of work जिसके लिए मैंने सीमेंट दिया था,
तो issue rates and store account, it is also maintained in this unit number 4. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5. जैसा मैंने बताया था कि रेट एनालिसिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो जैसा मैंने क्वांटिटीज यूनिट नंबर 2 में क्वांटिटीज निकाल लिए थे आपने, वही क्वांटिटीज को करंट रेट से आप मल्टीप्लाई कर लो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट एनालिसिस. बट इसमें रेट एनालिसिस में एक्चुअल क्वांटिटीज निकालना है, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स की एक्चुअल क्वांटिटीज निकालना है, और उससे फिर मल्टीप्लाई विद करंट रेट्स करके उसको मालूम करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पीसीसी, कॉस्ट ऑफ आरसीसी, कॉस्ट ऑफ प्लास्टर, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कितना कॉस्ट हो सकता है, तो उसमें लेबर्स कितने लगेंगे, वो सारे दोनों मिला के, मटेरियल लेबर मिला के, इट विल बी स्टडीड इन द रेट एनालिसिस. मार्केट रेट्स क्या रह सकते हैं, व्हाट शुड बी द मार्केट रेट्स, व्हाट आर द मेजर आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है ना, उसके क्या रेट्स रहेंगे, कैसे रेट्स निकालेंगे मेजर आइटम्स ऑफ वर्क्स के, विल बी स्टडीड इन द यूनिट नंबर 5. ठीक है. अगेन यूनिट नंबर 6 इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो यूनिट नंबर 6 क्या है, यूनिट नंबर 6 इज अगेन इंपॉर्टेंट. यूनिट नंबर 6 इज वैल्यूएशंस. ठीक है. वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, अगर उसको सेल करना है, या फिर सिर्फ डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर मेरी प्रॉपर्टी भी मेरे को सेल करना है, तो व्हाट इज द करंट रेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी. करंट रेट कैसा मालूम करूंगा, तो मैं वैल्यूएशन करूंगा उसका. ठीक है ना. तो पर्पस ऑफ वैल्यूएशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टी प्राइस एंड कॉस्ट, टाइप्स ऑफ वैल्यू, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है, लीज होल्ड, अगर कोई किसी को मैं कुछ सालों के लिए अगर देता हूँ, सपोज 10 ईयर्स के लिए अगर मैंने लीज पे दिया, तो उसका कैसा अमाउंट कैलकुलेट होता है. सिंकिंग फंड, अगर मैंने पर्टिकुलर अमाउंट को मैंने सेव करना हूँ, जैसे मेरी बिल्डिंग अगर 50 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन है, 50 ईयर्स के बाद में अगर मैं बिल्डिंग को देखा जाऊंगा, तो देर विल बी नो यूज ऑफ दैट बिल्डिंग. 50 ईयर्स में ऑल द प्लास्टरिंग विल बी मतलब देर इज डिटीरियोरेशन इन द प्लास्टर्स, मतलब ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शंस में, तो प्लास्टरिंग सब जड़ेगा, तो बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी. तो आफ्टर 50 ईयर्स रिनोवेशंस के लिए व्हाट शुड बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट केप्ट असाइड. पहले दिन से मैं उतना कॉस्ट बाजू में रखूंगा, सो दैट आफ्टर 50 ईयर्स दैट अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शंस. ठीक है. वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैं अमाउंट यूज करूंगा आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स, जो भी अपनी लाइफ ऑफ बिल्डिंग है. ठीक है. तो दैट मेथड इज अगेन यूज, दैट इज सिंकिंग. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सिंकिंग फंड मेथड. ये भी मालूम करेंगे कि आफ्टर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, we can use that amount for reconstruction of the building, for renovations of the building, renovations or reconstructions. ठीक है. मेंटेनेंस वर्क. डिप्रिसिएशन मतलब हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज इन कॉस्ट होता है. तो कितना डिक्रीज होता है ना, मेरी एक 10 लाख की बिल्डिंग थी, 50 लाख की थी, तो हर साल मेरा कितना डिप्रिसिएशन हो रहा बिल्डिंग का, है ना, भाई 10,000 मेरी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, या फिर 5,000 डिक्रीज हो रही है ना, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एटमॉस्फेरिक एक्शन या फिर लोकेलिटी, या फिर मैंने जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें, उसके हिसाब से. तो डिप्रिसिएशन, कैपिटलाइज वैल्यू, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस, नेट एंड ग्रॉस इनकम, ये सारी चीज़ें. रेंट फिक्सेशन, अगर किसी को रेंट फिक्स करना है शॉप का, या फिर रेंट फिक्स करना है पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क का, या फिर शॉप है, बिल्डिंग से 1 BHK फ्लैट है, या फिर एनी गोडाउन है, उसका रेंट फिक्सेशन कैसा होगा. तो रेंट फिक्सेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो विल बी स्टडीड इन द यूनिट नंबर 6. ठीक है. तो दीज आर ओवरऑल 6 यूनिट्स. सब समझ में आया? यस. दीज आर ओवरऑल 6 यूनिट्स. यस सर. सॉरी. यस सर. हाँ, सुषमा बोल रहे थे कुछ. सुषमा. यस सर. सर बोलिए. जैसे लाइफ ड्यूरेशन फिक्स करना, 10 इयर्स के लिए बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी हाँ. कॉस्ट में अफेक्ट करेगा? यस. नॉर्मली देखो, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 100 ईयर्स, इट इज एज्यूम्ड. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन की लाइफ जो है वो 100 ईयर्स, बट 100 ईयर्स तक अपन अज्यूम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्पैन है. तो बट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन सच ए वे दैट इट शुड एटलीस्ट 50 ईयर्स वो सस्टेन होना चाहिए. ठीक है ना. एटलीस्ट 50 ईयर्स देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन द प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो वो अगर जैसा मेरे को अगर 10 साल के लिए कोई बिल्डिंग बनाना है, तो मैं वैसे क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करूंगा, सो दैट मेरे 10 साल तक वो मटेरियल क्या हो जाए, मतलब स्क्रैप में होके बिल्डिंग मेरी एग्जॉस्ट हो जाए. ठीक है. बट अगर मेरे को 50 ईयर्स में यूज करना है बिल्डिंग को, तो सच टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. तो उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अफेक्ट होगा. यस, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी अफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन लाइफ ऑफ बिल्डिंग.
ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी अफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन लाइफ ऑफ बिल्डिंग। जैसा मैं सिंपल एग्जांपल में है ना, अगर मेरे पास वॉशिंग मशीन लेना है, मेरे पास 20 साल चलने वाली, तो कितने कितने हजार की लूंगा मैं, है ना, अच्छी ब्रांडेड लूंगा। अगर कोई बोलता है कि वॉशिंग मशीन लेना है आपको भाई, 5 साल चलेगी आपको करना है, तो ठीक है 10 हजार की 5 हजार की ले लेंगे, 5 साल में चलो फेंक दो उसको, खत्म करो। मगर अगर महंगी लेना है तो इट शुड सस्टेन एटलीस्ट फॉर 15 to 20 years। तो सेम इज द क्राइटेरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है ना, समझ में आया ओके सुषमा? यस तो सर। हाँ, जैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जैसा रहता है ना, वैसी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट उतना उसका लाइफ, जितना कम इन्वेस्टमेंट कम लाइफ। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सर। एनी एनी क्वेश्चन? समझ में आया ऑल 6 यूनिट्स? एक सिंपल वे में आप किया था मैंने, शॉर्ट वे में। ठीक है, ये डिटेल स्टडी में विथ प्रॉब्लम्स और विथ उसके सारे ब्रॉड वी विल स्टडी इन द यूनिट, ऑल द यूनिट्स विल बी कवर्ड। मतलब ये ऑनलाइन मोड में जैसे भी होगा अपन देखेंगे आगे में, जैसे भी सिनेरियो होता है आगे में, जैसे भी होता है चेंजेस, तो वी विल सी। तो अभी तो ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट इसमें स्टेजेस में वी विल सी, बट ऑल द यूनिट्स विल बी कवर्ड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट वेदर द पोर्शन विल बी कवर्ड और नॉट, और हाउ मेनी टॉपिक्स विल बी कवर्ड। ये इसमें कुछ थोड़ा ये नहीं है, ऑल द यूनिट्स विल बी कवर्ड। ठीक है ना, ऑल द 6 यूनिट्स विल बी कवर्ड इन अ प्रॉपर, जैसा आप ऑफलाइन में होते थे वैसी ऑफलाइन मोड से, मतलब ऐसा ऑफलाइन पैटर्न में वी विल ट्राई टू कवर ऑल द 6 यूनिट्स। ठीक है ना, मतलब जैसा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराता था, जैसे भी थी, है ना, इजीएस्ट वे में वी विल ट्राई टू सॉल्व इन ऑनलाइन मोड। ठीक है ना, ऑनलाइन मोड में आपको ऑल द 6 यूनिट्स विल बी कवर्ड। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स देखो यहाँ पे, मिनिमम 8 प्रैक्टिकल्स है, बट वी विल कवर एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल्स एज पर योर सिलेबस, RTMNU सिलेबस। 8 प्रैक्टिकल्स कवर करना है आउट ऑफ दिस 13 प्रैक्टिकल्स। तो वी विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल्स तो कवर करेंगे इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के कुछ प्रॉब्लम्स है उसका, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 1 इज देयर। प्रैक्टिकल नंबर 2 डिटेल एस्टिमेट है, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का मैं आपको प्लान दूंगा। एक कोई भी एक प्लान होगा, 1 BHK 2 BHK का प्लान होगा। अब उसका आपको स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सकेवेशन टू फ्लोर फिनिशेस तक आपको पूरा एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 2 का है। ठीक है ना, जो आपने अलग अलग बिट्स में पढ़े थे, अब उसको क्लब करके आप एक बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाल के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 3 फ्रेम स्ट्रक्चर का वैसी हो गया, जैसा लोड बेरिंग था वैसी फ्रेम्ड आ गया। प्रैक्टिकल नंबर 4 में देर विल बी कैलकुलेशन ऑफ स्टील, जैसा फाउंडेशन में स्टील होगा, और उसमें कॉलम्स में होगा, बीम्स में, स्लैब्स में, है ना, और डिफरेंट में, जैसा अगर कलवर्ट है तो कलवर्ट में, फ्लावर्स में, ब्रिजेस में, जो भी मतलब प्लान रहेगा उसके हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट द स्टील विथ बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ में आपको स्टील कैलकुलेट करना है, BBS। वो एक टेबल रहता है BBS, आप देखे होंगे साइट पे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में गया होगा कहीं, तो एक बड़ी शीट रहती है जिसमें डिफरेंट शेप ऑफ बार्स रहते हैं और उसमें क्वांटिटीज लिखी रहती है। वो शीट का नाम, दैट इज द नेम गिवन टू दैट इज BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आपको ड्रॉ भी करना है आपके रिकॉर्ड बुक्स में, और उसमें यू हैव टू फीड द डाटा इन दैट BBS। ठीक है, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट इज अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस। 1 मीटर का एक रोड रहेगा, तो उसका कितना मटेरियल्स एक्सकवेट हो रहा है, कितना डंप हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा मटेरियल्स रिक्वायर्ड है आपको। मेरे को अगर कंस्ट्रक्ट करना है 1 मीटर का रोड, तो मेरे लिए कितना मटेरियल्स मेरे को परचेस करना पड़ेगा, या फिर उतना ही मटेरियल काफ़ी हो जाएगा जो मैं डिग कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सकवेट किया उतना ही मटेरियल फुलफिल होगा, या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे को ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा विद from the any other site. So all these calculations will be covered in the unit number, that is practical number 5. 6 is स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि स्पेसिफिकेशन रहता है कोई भी काम करने के लिए, डिस्क्रिप्शन रहता है उसका, तो वो भी स्पेसिफिकेशन का एक प्रैक्टिकल रहेगा आपके पास। 8 आइटम्स के आपको स्पेसिफिकेशंस आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 में लिखना है। ठीक है, 7th प्रैक्टिकल में वैसे रेट एनालिसिस के कोई भी 8 आइटम्स के रेट एनालिसिस निकालना पड़ेंगे आपको, जैसा मैं दे दूंगा आपको। ये 8 आइटम्स के आपको रेट निकालना है, मार्केट रेट। ठीक है ना, RCC का मार्केट रेट क्या है, PCC का मार्केट रेट क्या है, फ्लोरिंग का मार्केट रेट क्या है, अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन का मार्केट रेट क्या है, ठीक है, प्लास्टरिंग का मार्केट रेट है ना। तो ये ऐसे 8 आइटम्स का मार्केट रेट का अपने को वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू राइट डाउन इन द रिकॉर्ड बुक्स। ठीक है, 8th एक्सपेरिमेंट टेंडर नोटिस का डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आपको लगाना है, और उसका एक ड्राफ्ट लिखना है हाथ से कि भाई टेंडर नोटिस में क्या रहता है, वेदर इट इज़ फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहता है, उसका डिपॉजिट कितना रहता है ना, उसका कितने स्पैन तक आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है, वो सारी चीज़ें टेंडर नोटिस में आप पेपर्स में देखे होंगे, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में टेंडर नोटिस रहता है।
तो उसको आपको ड्राफ्ट करना है, दैट इज फॉर प्रैक्टिकल नंबर 8। नाइन्थ में डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क बोलो या फिर मशीन की बुक वैल्यू आपको निकालना है, उसका डिप्रिसिएशन कितना होता है वो निकालना है। रेंट को फिक्स करना है, एक बिल्डिंग है मेरे पास, उसका रेंट फिक्स करना है कि उसका रेंट कितना रहेगा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अगर मेरे को रेंट फिक्स करना है तो ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू फिक्स द रेंट, तो वो सारा रेंट फिक्सेशन होगा। सर्वे होगा, सर्वे करना है आपको, मार्केट रेट्स निकालना है कि सीमेंट का एक बैग ऑफ सीमेंट दैट इज ग्रेड ऑफ सीमेंट के हिसाब से what is the cost of ultratech, what is the cost of ACC cement और different fine aggregate, coarse aggregate, या फिर टाइल्स का क्या रेट है, या फिर डिफरेंट मटेरियल्स का क्या रेट है, लेबर्स का क्या रेट है, वो सारा रेट निकालना है प्रैक्टिकल नंबर 11 में। 12 में प्लानिंग करना है, प्लम्बिंग वर्क के प्लानिंग, प्लम्बिंग वर्क अगर करना है फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए तो उसका क्या प्लानिंग हो सकता है, उसका कितना एस्टिमेट लगेगा प्लम्बिंग वर्क्स के लिए, तो उसका एस्टिमेट करना है, दैट इज फॉर 12। 13th is nothing but detailed estimate of building using estimated software, so there is no such software use, but we will use the excel sheet, ठीक है ना, excel sheet भी अपन यूज करेंगे अपन estimate निकालने के लिए, तो that is use of that excel sheet of the software for estimating, ठीक है। तो ऐसे 13 प्रैक्टिकल्स है जिसमें we will cover at least 8 to 10 practicals, minimum 8 है but we will try to cover 8 to 10 practicals, ठीक है। So these are the reference books for this, estimating and costing by Datta, B.N. Datta है, B.N. Datta बोल के एक book है, that is B.N. Datta. B.N. Datta is again an important book which has been available in the library. So you can use this book, Estimating and Costing by B.N. Datta. Next is Chakraborty is also there. Chakraborty Estimating and Costing is, these two books are important. ये जो दो books मैंने आप starting के जो दो नाम है बहुत ज़्यादा important है, because all the bits, all the units, all the things जो मैंने 6 यूनिट में अभी बताया हूँ या फिर practicals में जो बताया हूँ, all these things are covered in these two books, ठीक है ना। ये दो books बहुत important है। वैसे वैल्यूएशन बाय रोशन, ये भी एक बुक है, राठौर, दिस इज ऑल्सो फिलोसफी ऑफ वैल्यूएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है बट एज पर RTMNU सिलेबस और अपने सिलेबस के हिसाब से एन दत्ता एंड चक्रवर्ती, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो दिस बुक्स शुड ऑल्सो बी रिफर्ड, आपको बुक्स भी रिफर करना है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन रिफर द बुक्स ऑल्सो, ठीक है। So these two books are important, N. Datta and Chakraborty. Rest every notes and everything will be covered in the class. So be attentive. I will inform you on the WhatsApp group at what time the class will be started. जैसे आज मैंने मैसेज किया था कि the class will be started at that is 11 a.m. तो जैसा भी टाइम टेबल के हिसाब से we will try to take the classes as per time table. But unfortunately अगर कुछ ऐसा होता है तो I will inform you on the WhatsApp group. So be connected with this. So that we should cover all the syllabus, all the things, all the bits covered in the estimating and costing, ठीक है। So any doubts related with estimating and costing? Yes. So shall we end the today's lectures? Shall we end the today's lecture? 11:59 is there. Yes. So answer your roll calls. आज की attendance है तो सब. Everyone is present. Present है कि चले गए? मयूर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So roll number 1 to 10. 1 to 10 में बताओ कौन प्रेजेंट है? रोल नंबर 1 to सर रोल नंबर 1 आर्टिस्ट। हाँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 to 10 अगेन, उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट 11 to 20. सर रोल नंबर 11 इशिका रंगारी। Okay. 21 to सर रोल नंबर 12. Okay. 21 to 30. 21 to 30. Jai Kishan Bhardas, sir. Roll number 29. 29. Sir, roll number 22. Roll number 22. 22. Abhinav Made. Okay. Roll number 22. 31 to 40. Sir, roll number 40. 32. Next. Roll number 40. Roll number 40. Next. 34 44. 34 sir. 34. Okay. हाँ 41 to 50. Sir, 44. 44. Sir, 48. 48. 48. 51 to last. 51. 73. 73. 56.
73, 56. 56. Okay, 15, 59. 59, 16. 60, 60, नहीं 16. 16. Okay, 16. Next, anyone remaining? Anyone remaining? 1 करो जी आप. Okay. So here we will end this today's lectures. Okay. So I will try to yes. As per the timetable, we will have the next lecture also. Okay. So here we will end this.